السلام علیکم، میرا نام عصمت ہاؤس والی ہے، میں ریحان اسکول کی اسٹوڈنٹ ہوں، بیچ نمبر 24 لیول نمبر 01 اور ہمارا ایک ٹاپک ہے خود پر شک پر قابو کیسے پائیں اور اعتماد کیسے کریں۔ تو اس کے بارے میں اس حوالے سے میں چیٹ جی پی ٹی سے تھوڑی گفتگو کروں گی، کچھ سوالات ان سے کروں گی اور وہ مجھے ان کے ایک اچھے سے آنسر دیں گی۔ تو چیٹ جی پی ٹی کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، شکریہ پوچھنے کا۔ آپ اپنا پہلا سوال پوچھیں، میں اسی پر تفصیلی جواب دوں گی۔ جی، چیٹ جی پی ٹی میرا آپ سے پہلا سوال ہے، خود پر شک کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ سوچ رہی ہوں۔ وعلیکم السلام، بہت اچھا سوال ہے۔ خود پر شک سیلف ڈاؤٹ وہ کیفیت ہے جب انسان اپنی صلاحیتوں یا فیصلوں پر اعتماد کھونے لگتا ہے۔ یہ اکثر ناکامی کے تجربات، دوسروں سے موازنہ کرنے، منفی تنقید سننے یا ماضی کے تلخ تجربات کی وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ تقریباً ہر شخص کسی نہ کسی موڑ پر اس احساس سے گزرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ اسے اپنی بہتری کے موقع میں بدل لیتے ہیں، اور اگر ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں، چھوٹے چھوٹے اہداف حاصل کریں اور اپنی صلاحیتوں پر آہستہ آہستہ بھروسہ کریں، تو یہی خود پر شک آہستہ آہستہ خود اعتمادی میں بدل سکتا ہے۔ مختصراً سیلف ڈاؤٹ ایک احساس ہے، حقیقت نہیں۔ صحیح سوچ، مسلسل کوشش اور سیکھنے کے جذبے کے ساتھ اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ خود پر شک ہماری زندگی اور کامیابی پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ میں دیکھتی ہوں، جی بہت اہم سوال ہے۔ خود پر شک ہماری زندگی اور کامیابی پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ جب انسان اپنی صلاحیتوں پر یقین نہیں کرتا تو وہ اکثر نئے مواقع سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہ ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے کہ شاید وہ کامیاب نہ ہو سکے یا لوگ اس پر تنقید کریں گے۔ اس وجہ سے وہ اپنی اصل صلاحیتوں کا بھرپور استعمال نہیں کر پاتا۔ ہم، تعلیم، نوکری، کاروبار یا روزمرہ زندگی، ہر جگہ خود اعتمادی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مسلسل خود پر شک ذہنی دباؤ، بے چینی اور مایوسی پیدا کر سکتا ہے، جس سے کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ سیلف ڈاؤٹ مستقل نہیں ہوتا۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے اہداف حاصل کرتے ہیں، اپنی کامیابیوں کو یاد رکھتے ہیں اور مسلسل محنت جاری رکھتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ہمارا اعتماد بڑھنے لگتا ہے۔ پھر وہی انسان جو پہلے خود پر شک کرتا تھا، بڑے چیلنجز بھی پر اعتماد ہو کر قبول کرنے لگتا ہے۔ مختصراً خود پر شک اگر قابو میں نہ رکھا جائے تو رکاوٹ بن جاتا ہے، لیکن اگر ہم اسے سیکھنے کا موقع بنائیں تو یہی ہمیں زیادہ مضبوط اور کامیاب انسان بنا سکتا ہے۔ بالکل، آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں اور بعض اوقات لوگ جو ہے وہ خود پر بہت زیادہ شک کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ خیر، ہمارا اگلا سوال ہے، بالکل، کانفیڈنس اور ایروگینس میں کیا فرق ہے؟ اچھا سوال ہے، دیکھتی ہوں۔ جی بہت اچھا سوال ہے۔ خود اعتمادی اور ایروگینس ایک جیسے نہیں ہے۔ خود اعتمادی کا مطلب ہے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ، دوسروں کا احترام اور یہ ماننا بھی کہ ابھی بھی سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ اس کے برعکس غرور یا تکبر میں انسان خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے، دوسروں کی رائے کو اہمیت نہیں دیتا اور اپنی غلطی ماننے سے گریز کرتا ہے۔ مثلاً ایک پر اعتماد طالب علم کہے، میں نے محنت کی ہے اس لیے مجھے اپنی تیاری پر اعتماد ہے، لیکن میں مزید سیکھنا چاہتی ہوں، تو یہ خود اعتمادی ہے۔ لیکن اگر وہ کہے مجھے کسی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے بہتر کوئی نہیں، تو یہ غرور ہے۔ مختصراً خود اعتمادی آپ کو آگے بڑھاتی ہے، جبکہ غرور آپ کی سیکھنے کی صلاحیت کو محدود کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی صلاحیتوں پر یقین بھی رکھنا چاہیے اور آجزی کے ساتھ مسلسل سیکھتے بھی رہنا چاہیے۔ بالکل، یہ تو بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن آج کل کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے وہ ایک فیملی میں مطلب کسی کی کوئی بہو ہے یا کوئی ہے، تو وہ اسی غرور میں زیادہ ڈوبا رہتا ہے کہ بھئی مجھے یہ کام آتا ہے، میں کیوں کروں؟ تو مطلب کوئی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ خیر، ہمارا آپ سے ایک اور سوال ہے، کیا ناکامی خود پر شک کو بڑھا دیتی ہے؟ اگر ہاں تو کیوں؟
मैं सोचती हूँ जी, ये भी अहम सवाल है। नाकामी बाज़ औक़ात खुद पर शक बढ़ा देती है, क्योंकि इंसान सोचने लगता है कि शायद उसमें सलाहियत नहीं है या वो कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर नाकामी मनफ़ी नतीजा ही दे। अगर हम नाकामी को सबक समझें, अपनी गलतियों का जायज़ा लें और दोबारा बेहतर तैयारी के साथ कोशिश करें, तो यही नाकामी मुस्तक़बिल की कामयाबी की बुनियाद बन सकती है। बहुत से कामयाब लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कई नाकामियाँ देखी, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हर तजुर्बे से कुछ न कुछ सीखा। बिल्कुल। इसलिए मैं कहूँगी कि नाकामी इख्तिताम नहीं बल्कि एक मौका है। अगर हम मुस्बित सोच, सब्र और मुसलसल मेहनत से काम लें, तो आहिस्ता-आहिस्ता खुद पर एतमाद वापस आ जाता है और सेल्फ डाउट कम होने लगता है। इसलिए कहा जा सकता है कि नाकामी अगर सही तरह ली जाए, तो खुद पर शक बढ़ाने के बजाय हमें बेहतर, ज़्यादा मज़बूत और ज़्यादा पुरएतमाद बना सकती है। मनफी सोच को मुस्बत सोच में कैसे तब्दील किया जा सकता है? देखती हूँ। ये बहुत अच्छा सवाल है। मनफी सोच को मुस्बित सोच में बदलना एक दिन का काम नहीं है। सबसे पहले अपनी मनफी सोच को पहचानें। जब भी ज़हन में ये ख़्याल आए कि मैं ये काम नहीं कर सकती, तो उसी वक़्त इसे बदल कर कहिए मैं अभी पूरी तरह नहीं कर सकती, लेकिन सीख कर ज़रूर कर सकती हूँ। इस छोटी-सी तब्दीली से फ़र्क पड़ता है। फिर अपनी तवज्जो कमज़ोरियों के बजाय अपनी खूबियों पर रखें। चाहे छोटी कामयाबियाँ ही क्यों ना हों, उन्हें याद रखिए क्योंकि यही छोटे-छोटे तजुर्बात आहिस्ता-आहिस्ता एतमाद बढ़ाते हैं। मुस्बत सोच पैदा करने के लिए मुस्बित लोगों की सोबत इख्तियार करें, सीखने की नई चीज़ें अपनाएं और छोटे-छोटे अहदाफ हासिल करने की आदत बनाएं। आखिर में अपने आप से हमेशा मुस्बित अंदाज में बात करें और गलती हो जाए तो खुद को बुरा भला कहने के बजाय ये सोचें कि ये मेरी सीखने के सफ़र का हिस्सा है, मैं अगली बार पहले से बेहतर कोशिश करूंगी। मुख्तसरन मुस्बित सोच पैदा करने के लिए खुद पर यकीन, मुसलसल सीखना, अच्छी सोहबत और मुस्बित खुद कलामी ज़रूरी है। जब ये आदतें बन जाए तो मनफी सोच आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है और इसकी जगह एतमाद और उम्मीद ले लेती है। हुँ। अपनी सलाहियतों पर यकीन पैदा करने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? सोचती हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। पहला कदम ये है कि आप खुद को पहचानें और खुद पर एतमाद करें। मान लें कि हर इंसान में कोई ना कोई सलाहियत होती है, पर हर स्किल मश्क से बेहतर होती है। एक छोटा काबिल वसूल हदफ तय करें और जब वो पूरा हो जाए तो एतमाद का बहुत बढ़ जाता है। अपनी पिछली छोटी कामयाबियों को याद रखें, उन पर फख्र करें और अपना मुआवजा दूसरों से करने के बजाय अपनी तरक्की पर रखें। हर नई कोशिश को सीखने का मौका समझें, नाकामी नहीं। मुख्तसरन खुद पर यकीन का पहला कदम छोटे अहदाफ से आगाज, मुसलसल सीखना और अपनी हर छोटी कामयाबी को अपनी तरक्की का हिस्सा समझना है। यही आदत आहिस्ता आहिस्ता मजबूत खुद एतमादी की बुनियाद बन जाती है। नई चीज़ें सीखने से खुद एतमादी में कैसे इज़ाफ़ा होता है? देखती हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। नई चीज़ें सीखने से खुद एतमादी इसलिए बढ़ती है क्योंकि हर नई महारत आपको ये एहसास दिलाती है कि आप कुछ कर सकती हैं। जब आप कोई नया हुनर सीखती हैं या कोई मुश्किल काम कामयाबी से मुकम्मल करती हैं, तो आपको महसूस होता है कि आप पहले से ज़्यादा काबिल हैं और ये एहसास एतमाद में इज़ाफ़ा करता है। इसके अलावा सीखने से आपका तजुर्बा बढ़ता है, सोच वसी होती है और आप मुख्तलिफ हालात का बेहतर मुकाबला करना सीख जाती हैं। जो अब आपने अभी सीखा है, उस पर तवज्जो दें। इससे खुद पर शक कम होता है और आपका एतमाद मज़बूत होता जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कंप्यूटर चलाना सीखे, इंग्लिश बोलना शुरू करे या कोई नया टेक्निकल काम सीखे, तो इब्तिदा में मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसे-जैसे वो प्रैक्टिस करता है, उसका एतमाद बढ़ता जाता है और उसकी नई कामयाबियाँ उसे मज़ीद सीखने की तरगीब देती रहती हैं। इस तरह हर नया इल्म हमें ये यकीन दिलाता है कि हम मेहनत, सब्र और मुसलसल सीखने से हर रोज़ बेहतर हो सकती हैं। खौफ के बावजूद कदम उठाना एतमाद पैदा करने में क्यों ज़रूरी है? सोच रही हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। खौफ के बावजूद कदम उठाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एतमाद पहले नहीं आता, अमल करने से आता है। जब हम डर के बावजूद पहला कदम उठाते हैं, तो हमें नया तजुर्बा मिलता है। कामयाबी मिले या गलती हो, दोनों सूरतों में हम पहले से कुछ ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं।
अगर आप स्टेज पर बोलने से डरते हुए भी पहली तकरीर करें, तो शुरू में घबराहट होगी, लेकिन जैसे-जैसे प्रैक्टिस करेंगे, खौफ कम होता जाएगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हिम्मत का मतलब ये नहीं कि खौफ बिल्कुल ना हो, बल्कि ये है कि खौफ के बावजूद आगे बढ़ा जाए। हर छोटा कदम आपको आपके मकसद के करीब लाता है और ये यकीन दिलाता है कि मैं कर सकती हूँ। इसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता मजबूत खुद-एतमादी पैदा होती है। आखिर में खुद पर शक पर काबू पाने और पुरएतमाद ज़िंदगी गुज़ारने के लिए आपका हौसला अफ़ज़ा पैगाम क्या है हमारी ऑडियंस के लिए? ज़रूर, सोचती हूँ, ज़रूर। मेरी तरफ से तमाम नाज़रीन के लिए हौसला अफ़ज़ा पैगाम। मेरा पैगाम ये है कि कभी भी खुद पर शक को अपनी मंज़िल के रास्ते की दीवार ना बनने दें। हर किसी की ज़िंदगी में मुश्किलात और नाकामियाँ आती हैं, मगर यही हालात हमें मज़बूत बनाते हैं। अगर आज आपको लगता है कि आप किसी काम में कामयाब नहीं हो पा रही, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कभी कामयाब नहीं होंगी। इसका मतलब सिर्फ़ इतना है कि आप अभी सीखने के सफ़र में हैं। अपनी सलाहियतों पर यकीन रखें, अपनी गलतियों से सीखें और हर दिन अपने मकसद की तरफ एक छोटा-सा कदम बढ़ाएँ। याद रखें, बड़ी कामयाबियाँ छोटे-छोटे कदमों से ही शुरू होती हैं। अपने आप का दूसरों से मुआवजा करने के बजाय अपनी कल से बेहतर बनने की कोशिश करें। आखिर में यही कहूँगी कि खुद पर यकीन रखें, सीखना कभी ना छोड़ें और हर मुश्किल का हौसले से मुकाबला करें। इंशाल्लाह आप अपने ख्वाब ज़रूर पूरे करेंगे। आप सबके लिए मेरी नेक तमन्नाएँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच योर टिप्टी एंड अल्लाह हाफ़िज़।